Hello class 9, welcome in computer class. This is session 5, part B, unit 1, session 5, computer operating system. The first topic is software. A computer software is a collection of program and procedure that instructs a computer how to perform different types of tasks. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत सारे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन होता है। हम सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाइड सॉफ्टवेयर इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर divided into 4 parts: operating system, language processor, device, driver, utilities. Application software again divided into 3 parts: general purpose applications, specific purpose application, and customized software. System software, it is a collection of one or more programs which are designed to control the overall operation and performance of computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो इस ढंग से डिज़ाइन करा जाता है कि ये कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शन को देखेगा, इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। द फंक्शन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर टू रीड डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। आप इनपुट डिवाइसेस से, कीबोर्ड माउस से जो भी डाटा इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उस डाटा को रीड करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। टू ट्रांसमिट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस, जो भी डाटा प्रोसेस हुआ है सीपीयू के अंदर उसको आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। टू चेक द वर्किंग ऑर्डर ऑफ ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मतलब जो भी डिवाइस आपके कंप्यूटर से अटैच हैं वो वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं, इसको चेक करने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। To convert data and instruction into binary form that can easily be understood by the computer. As you know, the computer does not understand the Hindi English language, so the system software converts our English language into machine language that can easily be understood by the computer. Now a system software can be classified in the following category. System software further classified into different categories like operating system, device, driver, language processor, and utility software. This is operating system, and this operating system is divided into various other categories. First is the operating system. Now what is operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक एग्जांपल दूंगी। इन आवर स्कूल द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ आवर स्कूल। चेयरमैन सर, कोऑर्डिनेटर सर एंड प्रिंसिपल मैम ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस फंक्शन ऑफ आवर स्कूल। तो शी और ही इंस्ट्रक्ट द other teachers or other working people do this, do that, just like our operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है क्या करना है क्या नहीं करना। कंप्यूटर बीइंग अ मशीन कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हाउ टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको हर चीज़ के लिए एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जिसके बाद ये कंप्यूटर डिसाइड करता है कि क्या काम, कैसे काम करना है। It means that the user cannot communicate with the computer directly, thus we require an interface between the user and the hardware. यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस, एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ आवर school. The principal has various responsibility regarding the management of the school, like supervising student, teachers and worker, maintaining discipline, analysis, examination schedule, timetable, circular, meeting, parents teacher meeting and visitors, so many work.
तो just like a principal, the operating system work like a principal. There are various type of operating system available in the market for Windows, macOS, Linux and DOS. DOS is the older one. तो DOS आजकल यूज़ नहीं होता है, सब जगह विंडो, मैकओस, लाइनेक्स, यूनिक्स इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो यूज़ होते हैं. विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट्स अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम which is manufactured by the Microsoft. First operating system of Microsoft Corporation was Windows OS. Windows OS अक्टूबर 22, 2009 में बन के तैयार हुआ था और इसके बाद इसके एडवांस वर्जन आते चले गए. तो विंडोज़ 7 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है. इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम. What is the use of operating system and what is the benefits or significant feature of the Windows 7? Windows 7 इतना पॉपुलर कैसे हो गया, इसके क्या इतना महत्वपूर्ण था, इसमें कितना क्या अच्छा था. पहली बात तो ये इजी टू यूज़ था. Windows 7 हैज़ अ वेरियस अट्रैक्टिव लुक्स एंड कलरफुल थीम्स. बहुत कलरफुल था, बहुत ईजीली एक एक सिंपल क्लिक करिए और यूज़ कर सकते थे. मल्टीटास्किंग था. सेकेंड वॉज इट वॉज मल्टीटास्किंग. यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. सर्चिंग मेड ईजियर. यूजिंग विंडोज 7 यू कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन योर कंप्यूटर. कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करना हो, कोई भी फाइल सर्च करनी हो, बहुत ईजिली सर्च हो जाता था. पिनिंग टू टास्क बार. द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 इज मोर फ्लेक्सिबल and application oriented. You can pin your favorite program on the taskbar to easy access. आप सिर्फ एक क्लिक करके टास्क बार में कोई भी प्रोग्राम को क्लिक करके आप फटाफट उसको एक्सेस कर सकते हैं. एरो पीक इज़ द अनदर फीचर ऑफ विंडो 7. द एरो पीक फीचर. The feature allows you to quickly view the desktop without minimizing the open window. To do so, just point to the show desktop button at the right edge of the taskbar. taskbar के right side पे show desktop का बटन क्लिक करिए and this feature allow you to quickly view the desktop. आप तुरंत desktop देख सकते हैं. desktop पे सारे icons होते हैं, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा. Now class, look at the desktop. The small picture which you are seeing on the screen is called the icons. This is called icons. Look at this. This is icon. This is small pictures is called icon. This main screen is called desktop. This is a colorful desktop and this is a start button. Look at this picture. This is a start button and this last line is called task bar. This is task bar. Live taskbar preview. You can preview the window in full screen. Click it to the open window. You can close the window. Pause video, songs and from the thumbnail preview. Jump list. The good feature of jump list is this is a new feature which takes us the straight to the document. टास्क बार में क्या होता है, आप राइट क्लिक कर दीजिए. राइट क्लिक आप जैसे करेंगे एक छोटा सा मेन्यू खुल जाएगा. उस मेन्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी. जिस डॉक्यूमेंट को आपको खोलना है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो फट से खुल जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं, मतलब राइट क्लिक द जंप लिस्ट फॉर द इंटरनेट एक्सप्लोरर शो द रिसेंटली ओपन वेबसाइट. कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने राइट क्लिक करा, एक जंप लिस्ट खुल जाएगी. उसमें जितनी भी रिसेंटली आपने वेबसाइट्स को अभी देखा है वो सबकी लिस्ट आ जाएगी. अब इसमें से आप जो भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं उसे आप बहुत आराम से ओपन कर सकते हैं. यू कैन जंप टू एनी वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन इट.
in the list. A jump list also appear on the start menu to provide a quick access to different programs. Snap, it is a quicker way to resize the open window. Shake, click on the top window and window releasing the mouse button. Give your mouse to shake. So these are the features of operating system which make the Windows 7 popular. सो इस वीडियो में बस इतना ही क्लास, इसके अगले वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी.